Hello, Assalamualaikum everyone. My name is Muniba and I was really happy to be a part of this little event क्योंकि मैं खुद भी NED की graduate हूँ और just last year I graduated. So yeah, I really want you guys to be hopefully inspired by this whole tech and entrepreneurship space because it's obviously taking off अभी इस वक्त and you know आप news में देखते हो हर वक्त कोई ना कोई startup funding ले रहा होता है ये सब and Pakistan में भी it's really taking off. So before I get into everything, I know Sumaya already gave an intro, but let's have a quick little overview about who I am and why you should care about listening to me. So when I was in university, I used to like participate in a lot of competitions. So with like total of $10K winning hum logon ne ki, so that was something I feel like is what a lot of people when they look at that they're like, oh wow, ye kya kuch kar chuki hai. But I'll break it down exactly कि किस तरीके से आप इन चीजों में जा सकते हैं और you know कैसे you start going and thinking and doing things that are international level पे. लेकिन I was typical software engineer at NED और हर एक day in day out classes लेती थी. Or then I worked at Data Science Dojo, which is a software house, and it's based in US. लेकिन वो लोग अपने online timings कर रहे होते हैं. And it was, I think, my first corporate job. और मुझे I remember because of these competitions जो मैं ये participate करती थी और post करती थी उनके बारे में LinkedIn पे, this company reached out to me without me having to apply. Usually आप देखते हैं NED में software houses आते हैं, coding test देते हैं, फिर like बहुत लंबा चौड़ा process होता है ना. But this is something जो एक LinkedIn message से हुआ. Their HR reached out to me. Then they were like कि आपको hire करना है वगैरह जो भी. Then after that, in 2025, I worked at Conrad Labs, and this was again just from LinkedIn. उन्होंने मुझे message किया, and for people who don't know, Conrad Labs is run by the co-founder of Airlift, and मतलब Airlift so up close हो गया, so now he's running this software house. So he reached out to me and just messaged. So my point is कि this entrepreneurship space से आपको जो काम भी करना होगा ना वो आराम से those opportunities will come to you. You don't have to apply to them. So currently right now I'm at Phoenix Venture House. ये तो actually NIC कराची में भी इनका एक office है and you know remotely आप Ireland और UAE से काम कर रहे होते हैं. So you build these startups or ventures वगैरह. So I would really recommend you guys go to NIC Karachi for their events वगैरह क्योंकि उधर बहुत international level पे काम हो रहा है. तो yes और ये Oxford Machine Learning Summer School ये जब I was in 2020 like my third year. So I got an invite from them और मुझे machine learning का बहुत शौक है, AI का बहुत शौक है, so then I started thinking about that. So how exactly do I want to really inspire you guys to you know think internationally, step by step के कैसे करते हैं ये सारी चीजें. So number one is when I was in second year के end में ना, so I really wanted to do international level की चीजें. मुझे ना बहुत दिल चाह रहा था कि मैं LinkedIn पे देखती थी और लोगों ने ये XYZ चीज win की होती है वो. So the first hackathon when I started with hackathons, आप देखें online जाएं LabLab AI. LabLab AI is like an international AI hackathon hosting platform. तो वहाँ पे day in day out हर month हर week hackathons हो रहे होते हैं और बड़ी-बड़ी companies are sponsoring them. तो मैं और मेरी दोस्त ने बस ऐसे ही apply किया. हमें कोई hope नहीं था कि हम कुछ जीतेंगे या जो भी, but हमें सीखना था. And once we applied, we actually ended up मतलब एक के बाद एक हम जीत भी गए. और even though it was an international level, हमें यकीन ही नहीं था कि हम जीतेंगे. वो तो बहुत दूर की बात थी कि select shortlist भी हो. And then after that, उसी same project को वो एक nutrition website थी. उसको हम लोगों ने refine किया. फिर 2 और friends आए और हम लोगों ने उसे Google Solution Challenge में submit किया. You guys should also अभी recently भी पाकिस्तान में से कुछ लोग जीते हैं Google Solution Challenge. They went to Singapore, I believe. So do keep up with these things on LinkedIn जब भी आप लोगों को time मिले because बहुत international level scale में और आप पाकिस्तान से ही begin कर सकते हैं ये सारे काम. So that was my point when you know CIS community reached out to me. I wanted कि आप सब देखें कि ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में ही और वो फिर आपको international level पे लेके जा रही हैं. And you know you should not think कि हम XYZ यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते और ये सिर्फ जो बाहर की यूनिवर्सिटी लोग हैं वो कर सकते हैं. There's nothing like that. और अच्छा बाकी क्या है ये ITC and Asia आप में से I think ये अभी recently हुआ है या होने वाला है.
इधर एक्सपो सेंटर में होस्ट होता है, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जस्ट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, जस्ट टू गेट फंडिंग और व्हाटएवर लाइक दैट। तो उधर एक कंपटीशन हो रहा था, मैंने फौरन अप्लाई कर लिया, सोचा ही नहीं, मैं अप्लाई कर लिया। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि यू गाइस शुड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन these competitions in Pakistan जो स्टार्टअप बेस्ड होते हैं, बिकॉज नॉट ओनली डू यू गेट फंडिंग, उससे ज्यादा आपको जो रिकॉग्निशन मिलती है, फिर जो लोग जिनसे कनेक्शन मिलती है ना, दैट्स समथिंग दैट आई डोंट थिंक कोई और चीज बीट कर सकती है, राइट? तो अच्छा, and this last cheese was the 92 Disrupt event. So anyone who is like involved in the startup space in Pakistan, अगर आप में से कोई किसी ने शार्क टैंक पाकिस्तान देखा हो या जो भी, तो मैंने तो वहीं से शुरू किया। That's how I found out about this event, जब मैं शार्क टैंक पाकिस्तान देख रही थी। और उधर क्या कहते हैं, वो लोग इस इवेंट में आ रहे होते हैं, 92 Disrupt, it's held by Catalyst Labs। तो बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, लेकिन आई नेवर इवन इमेजिन कि मैं कुछ जाऊँ उधर या कुछ जीतूँ या जो भी, या रिसीव करूँ फंडिंग या जो भी। So over there, Security AI, which is like बहुत अच्छी एक software company, and recently they got acquired. So Rehan Jalil, who was also from NED, और उन्हें वो पूरी company scale किए to $1 billion company, and he had some people come into NED जो promote कर रहे थे कि भाई इस competition में participate करें और NED के students को लाएं और ये सब। So we were one of the people who participated in this event, and it actually ended up winning, right? So my point is कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, ये जीता, ये कैसे किया? आई वाज लाइक, मैं क्या थी, सेकंड ईयर स्टूडेंट थी, थर्ड ईयर स्टूडेंट थी, एज सच मेरा कुछ वो नहीं था कि आई वाज सम क्रेजी कोडर और व्हाटएवर। इट्स जस्ट कि जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, मैं डाउट नहीं करती थी कि मैं नहीं कर सकती या वो भी, मतलब माय पॉइंट वाज अप्लाई कर लो, ट्राई मारो और देखो क्या होता है, बिकॉज सो मच इज पॉसिबल, और आप जब तक ट्राई नहीं करोगे यू रियली कांट अचीव दीज थिंग्स, राइट? और एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू देखनी चाहिए। So this was one thing कि जो technical skills है ना, मैंने अपनी journey किस तरीके से bring की, and how I would recommend you guys to also do it, कि आप जब technical skills बना रहे होते हैं ना, तो you can do them from these companies जहाँ पे आप intern बन रहे होते हैं। So this is one generative AI automation agents that I made for one of the software houses, and उधर जाके technical skills, फिर यहाँ पे इधर NCAI या NIC lab, I forgot the full name, वहाँ पे वो लोग जनरेटिव एआई मॉडल्स यूज कर रहे थे टू स्टार्ट बिल्डिंग अप दीज विजुअल मॉडल्स, और वो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज करने के लिए। तो इन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए आई जस्ट स्टार्टेड एट एनईडी, लाइक जस्ट यहाँ से ही चीजें स्टार्ट, स्किल्स लेना शुरू की कि कैसे असली जगह पे काम हो रहा है, एक प्रॉपर अप्लाइड यूज केस पे हो रहा है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ को बस यू गाइस आर जस्ट लर्निंग, जो भी टीचर्स पढ़ा रही हैं, आप जाएं देखें और क्या कर सकते हैं, जो एआई अभी चल रहा है उससे क्या चीज बनवा सकते हैं। तो yes, technical skills are important, and then it's the fact that you have to ideally aim to be a polymath. Now a polymath is someone that has different skills and knowledge in different fields. So one of the reasons जो ये entrepreneurship field और ये जो जगह है the startup space is so ideal, I think, for especially अगर कोई यूनिवर्सिटी में अगर वो इस space में आए, ना कि they just fully specialize on one चीज, is because you can be a polymath. You can learn all these different skills, जो business skills होती हैं, किस तरीके से आपको अपना venture scale करना है। Literally venture capital is sounds so scary है, पता नहीं क्या है, funding receive हो रही है लोगों को, but it's not that difficult once you start getting into these things और अपना time and effort इसमें लगाएं, because the world is run by these kind of businesses and startups that scale from 0 to 100, right? So you also learn these marketing skills जो I feel like technical students को आनी चाहिए, कि किस तरीके से आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाई है, आप खुद उसको प्रमोट करें, खुद उस पर यूजर्स लाएं। At the end of the day, everything is a user business, and I think that skill of getting users on to using a certain app जो आपने बनाई है, वो बहुत valuable है। And you should, एक तो आप अपनी technical skills बना रहे हैं, जो apps बना रहे हैं, या you're working on some kind of software, और जो भी कोई even hardware related device हो, तो उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे यूजर्स को लाना है, कैसे उनको रिटेन करना है, उनसे डिस्कशन वगैरह। एंड देन इट्स सेल्स। आई थिंक सेल्स इज सो अंडररेटेड और बहुत स्केरी लगता है, लेकिन वेदर यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, जो दूसरी कंपनीज या आप लोगों के एफवाईपी में भी होता है ना कि लॉट ऑफ द टाइम्स जो आप एफवाईपी प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिफरेंट कंपनीज कम टू रिव्यू यू गाइस, और वो देखते हैं कि कौन सा वर्थ इट है, किसको हम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काफी लोग आप देख रहे होंगे वो कंपनीज के साथ अपना एफवाईपी ज्वाइंट बना रहे होते हैं ना, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे
वो अपने उस प्रोजेक्ट को ट्राई कर रहे होते हैं, उस कंपनी में लग जाए किसी तरह, या इन लोगों ने जो बनाया वो लोग खरीद लें। सो एक तो वो लेवल होता है कि आप एंटरप्राइज क्लाइंट्स को आप चीजें बेच रहे हैं, और सेकंड चीज होती है कि आप यूजर्स को कोई चीज खरीदवा रहे हैं, राइट। जो स्टार्टअप्स होती हैं, यू लर्न हाउ यू कैन मेक योर ओन स्टार्टअप अर्न सम रेवेन्यू, क्योंकि यू नो यू डोंट बिगिन विद लाइक फिक्स सैलरी जो यूजुअली जॉब्स में मिलती है ना, बस फिक्स सैलरी आ रही है। इसमें यू हैव टू नो हाउ टू रिड्यूस योर कॉस्ट, इंक्रीज योर प्रॉफिट्स, और एक रेवेन्यू किस तरीके से आप बनाएं। तो वो जो सेल्स स्किल होती है, वो जो सीखने को मिलती है ना, आई थिंक यू नो ये मेन चीज है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। एंड यू सी ऑल दी स्टार्टअप स्पेशली पाकिस्तान में, जैसे यांगो किस तरीके से उसने टेक ऑफ किया, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो चीजों के बारे में आप सोचने लगते हैं। एंड टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक दैट्स व्हाट टेक्स यू रियली फार इन लाइफ। एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड आजकल चल रहा है, डू गेट इनटू दैट। तो sometimes a lot of people think कि you know जो हमारे पास resources हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान में, हमारे पास we don't have access to certain things, और यहाँ पे तो लाइट जा रही है, और यहाँ पे तो हम कैसे बना सकते हैं next big company। और you know you really have to look at the people who are pioneering things in this day and age, and उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया। एक कंप्यूटर और वो खुद बैठे हैं, शुरू तो उन्होंने वहीं से किया ना। And I think the biggest inspiration for me right now is Rehan Jalil, or Rehan Jalil is a Pakistani and he started at NED, और उससे पहले उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था, and now he sold his company Security AI for $1.7 billion. Like, can you imagine that level of क्या कहते हैं scale happening in Pakistan, that person who started right where you guys are. And so I want you guys, whenever you think of, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को आगे वो सोचने का कह रही हूँ, लेकिन I really think कि you guys should start thinking about these big companies and be a little bit delusional कि आप ये सोचें कि मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, कि उसको ब्रेक डाउन करें, रिवर्स इंजीनियर करें, उन लोगों ने शुरू कहाँ से किया था, हर कोई उस लेवल पे थोड़ी होता है। तो when you start in this entrepreneurship space, तो क्या होता है, मेन मसले यही आ जाते हैं, you see all these people जो आपसे बहुत आगे हैं, और आप नहीं, आपको लगता है भाई ये लोग तो, इन लोगों को ज्यादा स्किल है, इन लोगों के पास ज्यादा वो है, बैकिंग है, और वेंचर कैपिटल इन लोगों के पीछे आ रहा है। बट इट स्टार्ट्स स्मॉल, राइट। उन लोगों ने भी कहीं से शुरू किया था, आप लोग जहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज का फुल इस्तेमाल करें। सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर क्या कहते हैं नेटवर्क। आप जिस तरीके से कोई इवेंट्स में जा रहे हैं, लोगों से डिस्कशन करें, जैसे अभी ये इवेंट हो रहा है, यू आर लर्निंग अबाउट लाइक कौन कौन से इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। इफ यू डिडंट नो अबाउट 92 डिस्टर्ब, इफ यू डिडंट नो अबाउट ITC इन एशिया, अब आपको पता चल गया है। तो यू नो कीपिंग अप विद दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड यूजिंग योर अनफेयर एडवांटेज। आई थिंक NED इज, लोग बहुत बुरा कहते हैं NED को, पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इफ यू नो हाउ टू गो अबाउट इट इन द राइट वे। आई थिंक जिन सीनियर्स से आप बात कर रहे होते हैं और ये इस तरीके से ना, तो यहाँ पे काफी alumni है that have really achieved some huge things and you should really be inspired by them, follow them, देखें वो क्या कर रहे हैं, उनको रिवर्स इंजीनियर करें, उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया, कैसे वो लोग इस पॉइंट पे आए। तो आई रिमेम्बर मैं जब सेकंड ईयर में थी और मुझे कोई सीनियर लगता था कि वाओ इन लोगों ने तो ये अचीव कर लिया ग्रेजुएट होने के बाद, तो मैं उनकी प्रोफाइल पे जाती थी और हिस्ट्री देखती थी उनकी कि ये लोग जब यूनिवर्सिटी में थे ये क्या करते थे, and then how did they reach that point. So I think a lot of alumni from NED are like in these क्या कहते हैं UK US वगैरह, वहाँ पे जा रहे होते हैं, या इवन टर्की मलेशिया। तो उनको आप जरूर फॉलो किया करें, देखा करें इन लोगों ने कैसे किया है, मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड it will help you achieve your dreams. My main point is when you go into these fields, मुश्किल होता है and it's not easy, so you will face a lot of issues, but you have to realize कि अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। Sorry. अच्छा, ओके, दिस इज माय फेवरेट चीज। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड्स में जा रहे होते हैं, राइट, तो उसमें यू गेट अ चांस टू बी अराउंड पीपल दैट आर सो मच बेटर देन यू, और ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कंपनीज वगैरह में मिलती है, बट दैट लेवल ऑफ इंटरेक्शन, a lot of coaches are in these startup spaces ना, जैसे NIC में भी coaches हैं, और these are people from the Google Solutions Challenge, जिन लोगों ने हमें हेल्प आउट किया कि किस तरीके से चीजों को बिल्ड करनी है, कि चीजों को स्केल करना है, या उन लोगों के पास वो स्किल्स हैं और वो एक्सपीरियंस है जो हमारे पास अभी नहीं है। एंड आई थिंक
सॉरी मुझे बहुत खांसी हो रही है। तो एज स्टूडेंट्स हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि इतने बड़े ग्रेड लोगों के साथ हम काम करें या उनसे सीखें, या इतना ज्यादा हम वो अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं लेते। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज जैन हसन, राइट? तो आई डिडंट नो हु ही वाज बिफोर आई बिगन दीज हैकाथॉन्स। और मैं एक हैकाथॉन में थी, तो उसमें यूजुअली बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं ना उधर इंटरनेशनल, जो आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, उसमें वो लोग इंजीनियर्स लाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका भी गोल है कि सारे लोग हमारी प्रोडक्ट को यूज करें, तो वो लोग इंजीनियरिंग मेंटर्स रखते हैं। तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं रीच आउट करती थी चीजें डेवलप करने के लिए, जब ही वाज हेल्पिंग इन दैट हैकाथॉन। तो वो जो एडवाइस उन्हें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दी, आई डोंट थिंक कि अगर मैं किसी भी टीचर से हेल्प मांगती वो मुझे वो लेवल ऑफ चीज मिलती। तो आपको अगर फ्री में एक मेंटरशिप मिल रही है, यू हैव टू टेक इट सो सीरियसली, और सो मतलब उसको उसको जो वो वैल्यू देनी चाहिए जो हम लोग नहीं यूजुअली दे रहे होते हैं। देन देयर इज दिस सकीना अब्बास एंड हफ्सा मुनव्वर। जब हम गूगल सॉल्यूशंस चैलेंज में थे, तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं हम क्यों टाइम लगाएं एक चीज बनाने के लिए, और सारे लोग कर रहे हैं, और हम ना जीते तो और फजूल में टाइम जाया होगा। लेकिन इवन इफ यू डोंट विन, these people are putting their time कि वो आपको कोचिंग दें या मेंटरशिप दें। there is also I forgot his name, but वो इधर गूगल डेवलपर सोसाइटी है ना, तो वहाँ पे वो बहुत टॉक्स दे रहे होते हैं, और ये सब वो सकीना अब्बास के साथ ही। तो the point is कि these people have already built their startups, or they are already, जैसे Hafsa Munawwar is a growth manager at Google, and she is giving back to the community by entering these entrepreneurial competitions or spaces, और मेंटरशिप्स दे रही है। देन देयर इज अहमद अयूब एंड राजा इकबाल। अच्छा, ये लोग वो हैं जो हु हैव ऑलरेडी बिल्ड देयर कंपनीज, राइट? और जब मैं इधर क्या कहते हैं इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए जाती थी ना, आई वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज पिक अ स्टार्टअप। कोई सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में जाऊँ मैं, मेरा दिल नहीं चाहता मैं किसी बहुत बड़ी एंटरप्राइज कंपनी में जाऊँ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, ये लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी कंपनी को उस लेवल पे, राइट? तो इट्स लाइक वर्किंग एट अ लार्ज स्केल स्टार्टअप। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या जो भी, ट्राई एंड गो फॉर स्टार्टअप्स, ट्राई एंड गो फॉर वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज आई ऑल्सो बिगैन, मैंने काम करना शुरू किया स्टार्टअप से, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से चलते हैं कंपेयर टू जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज कंपनी है और एस्टैब्लिश है, जैसे आप देखें सिस्टम्स है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस बन चुके हैं, उन लोगों का अप्रोच डिफरेंट होगा, इन लोगों का अप्रोच डिफरेंट होगा। जो फास्ट पेस आपको मेंटरशिप मिलेगी, जो आप देखेंगे टीम्स किस तरीके से बिल्ड हो रही हैं, टीम्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कोलैबोरेट कर रही हैं और स्केल कर रही हैं, तो वो लेवल ऑफ मेंटरशिप आई थिंक इज सो नेसेसरी। और हम लोग जब अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में है ना, हर एक अपॉर्चुनिटी लर्निंग की हो ना, वो इस तरीके की हो कि आपको कोई मेंटर मिल जाए, और आपको कोई आप ऐसी जगह काम करो जहाँ पे समवन इज एबल टू हेल्प यू, और यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन एंड यू गेट टू वर्क वेयर दे आर वर्किंग। So I think NIC is really good as a good starting point. आप वो लोग जो इवेंट्स कर रहे होते हैं, आप लोग जाया करें। A lot of them are open to NED, तो सामने NED के अंदर ही NIC है, तो attend those sessions, learn from people who have so much more experience than you, क्योंकि आपको वो advice without going through all those few years of मेहनत, वो advice मिल रही है without having to learn it the hard way। और क्या कह सकते हैं, जो आप अब जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ ना इसको भी एक पढ़ाई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें, लाइक डोंट गो आफ्टर के मेरी जीपीए अच्छी है या जो भी, ठीक है, आई थिंक पर्सनली 3.5 से अगर ऊपर जा रही ना तो बस अब सही है, इस पे अब फोकस ले आए आप लोग। तो इवन 3 से अबव इज लाइक रियली गुड, तो यू शुड रियली स्टार्ट टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स सीरियसली एंड टेकिंग मेंटरशिप सीरियसली। इस यूनिवर्सिटी वाली लाइफ में ना यू आर नॉट गोना गेट इट बैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस यूनिवर्सिटी के बाद ना जो प्रेशर आता है टू स्टार्ट अर्निंग और टू गेट जॉब्स और या अपने स्टार्टअप को स्केल करना, तो यू कैन ऑब्वियसली, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन जो फाइनल ईयर में बेचारे, तो माय पॉइंट इज कि आप इन चीजों पे अभी से ध्यान लाना शुरू कर लें, बिकॉज इन दिस जनरेशन दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ you learn a lot of things that you don't normally learn by going down the traditional path। और यस, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ये मेरे काफी सारे मेंटर्स हमें यही कहते थे कि हाउ डू यू एक्चुअली गो इनटू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई थिंक जो टू टेक्निकल लोगों के लिए जो जगह है ना, जो बहुत सिखाएंगी आपको और बहुत इंटरनेशनल विजिबिलिटी लाएंगी आपको, यहीं पाकिस्तान में बैठे बैठे,
और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं, और क्योंकि इधर पाकिस्तान में भी लोग हैकाथॉन्स कर रहे होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी CIS नहीं किया था, पता नहीं कोई एक सॉफ्टवेयर कम्युनिटी थी, उन लोगों ने इधर NED के अंदर ही हैकाथॉन किया, एंड काफी अच्छी अमाउंट्स वो लोग दे रहे थे। यहाँ से आप अपनी रेप्स बनाते हैं टू you think global but you start acting locally. You start also participating in competitions जहाँ पाकिस्तान बैठ के आप कर सकते हैं. Next is open source. I honestly love GitHub, और एक वो है GitHub Student Developer Pack. अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है ना, वो फौरन जाके उस पर साइन अप करें. If you have an NED University ID, तो they give you a lot of services for free just because you're a student. And it doesn't matter कि आप किसी भी कंट्री में हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज आपको दे देता है. तो क्या कहते हैं, डेटा कैंप के सारे कोर्सेज हैं, किस तरीके से आप अपनी AI स्किल्स बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ा सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड स्किल्स भी बढ़ा सकते हैं. एंड अनदर थिंग इज ओपन सोर्स में ना, आप जो ओपन सोर्स कंपनीज हैं जैसे हगिंग फेस है और भी BB8 है, बड़ी एक टेक कंपनी, इन लोगों का कोड बेस दिया हुआ होता है. तो इफ यू आर अ कोडर, राइट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इन कंपनीज में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें. ओपन सोर्स से आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, थोड़े बग्स फिक्स करें, बट द पॉइंट इज आप ये इन कंपनीज की बग्स फिक्स कर रहे होंगे. एंड आई हैव like a lot of friends who have really made it far with open source. मैं तो hackathon वाले पाथ के अंदर गई, but open source is something जो आपको यहाँ से बैठ के आप इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं. I've seen a lot of these people, जो गूगल का ओपन सोर्स कंपटीशन होता है, उसमें you get a chance to work for a company who are looking for developers, who are looking for people all over the world, and they pay really good amounts of money. तो उनके लिए भी काम करना, वो लोग किस तरीके से स्केल हुए इंटरनेशनल डेवलपर्स और इंटरनेशनल टीम्स के साथ, आई थिंक दैट्स आल्सो सच अ वैल्यूएबल स्किल इन दिस डे एंड एज. और मैंने सोचा था कि मैं लास्ट 20 मिनट्स रखूं उसके लिए. इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर. और बाकी अदर देन दैट, yes, this is most of what I wanted to say, कि किस तरीके से आप हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें. आई वांटेड कि यू गाइस हैव एन इमीडिएट स्टेप, अब क्या करना है. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से ये चीजें मिल रही हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे एक स्टार्टअप में कितनी फंडिंग आ रही है और ये सब, बट हम पाकिस्तान में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं. हम NIC के इवेंट स्टार्ट करें, ज्वाइन करना. लैब AI इज अ हैकाथॉन वेबसाइट जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं. आप साइन अप कर लें, उधर उनके ईमेल्स आ रहे हैं, आप उन पे रजिस्टर कर लें. ओपन सोर्स, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, हम इंटरनेशनल वाले कोर्सेज से सीख सकते हैं. सो या, आई थिंक दैट्स मोस्ट ऑफ व्हाट आई वांटेड टू से 30 मिनट्स में. बट थैंक यू फॉर योर गाइस टाइम और फॉर लिसनिंग इतनी देर के लिए. और you really have to, I would really recommend कि आप think global. If you take away anything from this, is to think global and act local. Think, क्या believe करें कि आप उस लेवल की चीज अचीव कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वो बन सकते हैं, और देन स्टार्ट एक्टिंग लोकली. जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको मैक्सिमम एडवांटेज है. एंड ऑल्सो आपको मैं बता रहा हूँ यही कि इधर ये जो ओपन सोर्स वगैरह था, इसमें लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू गो टू एनीवन्स लिंक्डइन और वो जिस तरीके से पोस्ट कर रहे होते हैं अपनी अचीवमेंट्स, तो आई डोंट थिंक यू गाइस शुड नॉट पोस्ट. और लोग अपनी प्रोफाइल बना ही नहीं रहे होते, कनेक्शंस भी नहीं बना रहे होते. तो लिंक्डइन पे पोस्ट करना, यस, यू गाइस शुड रियली स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल और उनके साथ कन्वर्सेशंस करना स्टार्ट कर लें. मैं पता क्या करती थी सेकंड ईयर में जब मैं थी ना, इफ आई वाज इंस्पायर्ड बाय समवन, मैं उनको ये मैसेज कर लेती, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू एंड आई वुड लव टू नो हाउ यू डूइंग XYZ. और वो लोग, उनसे आपको एडवाइस मिल रही है, यहाँ बैठे बैठे आपको किसी इतने उनसे मिल रही है एडवाइस. सो यस, डू ट्राई आउट दीज थिंग्स ऑल्सो, कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करें और अपने आप को कैसे उस पॉइंट पे लाएं टू become the next, Elon Musk or next Mark Zuckerberg, because it really is possible, and I think you have to believe it and you have to start acting on it. Or yes, and anyone has कोई भी questions या किसी भी चीज के बारे में advice चाहिए or something like that, I left these few minutes to help you guys with that. Over to the CIS team. Okay, if anyone have any questions, they can ask in the chat box and then you can answer them. Otherwise, we'll just end the session. Okay.
Does the CIS team have any questions जो उन लोगों ने जब सुन रहे थे या जब देख रहे थे, कोई क्या हम पूछ सकते हैं इसमें, ये कैसे क्या, ये एग्जैक्टली कैसे हुआ? I forgot. Yes, someone is speaking. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अपनी पूरी अभी तक की जो भी आपकी जर्नी थी आपने वो शेयर की, तो अगर आपको एक मौका मिलता या मिले कि आप फिर से स्टार्ट करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप रिपीट नहीं करेंगी? जो मैं रिपीट नहीं करूँगी, आई थिंक कि मैंने ना अपना फर्स्ट और सेकंड ईयर बहुत ज़ाया किया। मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने ये सब चीज़ों में लगी रहती थी, और आई वुड नॉट इतना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया में तो when I was in third year ना, मैंने सोशल मीडिया स्टॉप कर दिया यूज करना बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली। जो इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आई रियली स्टॉप दैट। आई फील लाइक अगर मैं वो पहले रोक देती ना तो मैं और ज़्यादा कुछ कर लेती। तो वो चीज ये चीज आई डोंट वांट टू बी लाइक वो जो नहीं होते अम्मा अब्बा जो बोल रहे हैं फोन कम यूज करो, लेकिन मेरा ये ऑनेस्टली था। मैंने जितना टाइम जाया किया ये सब, आई वांट से कि डोंट हैंग आउट विद फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आप जाएं, एंजॉय करें, फेस टू फेस मिलें और बातें करें, बट ये जो फोन पे जो डूम स्क्रॉलिंग हो रही थी ना, इसको मैं बहुत अवॉइड करती। एंड देन व्हाट एल्स, सेकंड मेरे अंदर आई गेस इनिशियल पॉइंट्स पे ना वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन नहीं था। मैं जाती थी यूनिवर्सिटी, फिर वापस घर आ जाती एंड दैट वाज इट, राइट। फिर अगले दिन मैं कहती आई है ये वाली असाइनमेंट, आई है वो वाली असाइनमेंट। तो यू हैव टू रियली वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, राइट। और आपको जिस तरीके से व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी ना, मैं उसके साथ इंटर्नशिप वगैरह भी जा रही थी और फिर ये प्रोजेक्ट्स भी बनाती थी। तो कैसे दिस आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं बिलीव करना कि भाई वो क्या कहते हैं कि मिड्स हैं, हम ये कुछ और नहीं कर सकते, बस मिड्स ही कर रहे हैं। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और इतना ज्यादा भी पढ़ाई पे फोकस, इट्स गुड ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज सर्टेन थिंग्स ओवर द अदर। तो मैं क्या कर रही थी, पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे फोकस रही थी, आगे वाली चीजों के बारे में सोच नहीं रही थी। तो आई थिंक अगर मेरे पास चांस होता तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी मैं ज्यादा पार्टिसिपेट करती बाकी चीजों में। और अच्छा, ऑल्सो सोसाइटीज में मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं आई फॉरगॉट मैंने कब स्टार्ट किया। आई विश आई पार्टिसिपेटेड इन सोसाइटीज पहले से ही, क्योंकि ये चीजें आपको जो टाइम मैनेजमेंट सिखाती है ना, कि आप साथ साथ पढ़ाई को भी और ये सब भी लेके चलें, तो उससे होता है। आई होप दिस गिव्स यू द एडवाइस आई नीडेड। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर कोई चैट में आ रहा है, आई डोंट नो, आई कांट रियली सी। इकरा, आप चैट से रीड कर दो क्वेश्चंस। ओके, मैं रीड कर देती हूँ। मोहम्मद उमर ने पूछा है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? As a first year student, I think it depends on what you want to achieve at the end of the day. हमारे जो एक कोच है ना इधर फिनिक्स वेंचर हाउस में, he makes us all write नॉर्थ स्टार्स। तो नॉर्थ स्टार क्या होता है? वो आपका आइडियल, जो अगर आप सोचें आपको कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में, जो कि मिल सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और थोड़ा अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी जाएं कि यू शुड बिलीव कि अल्लाह ताला विल मेक दैट पॉसिबल फॉर यू। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लैरिटी से सोचें कि अगर मुझे क्या चीज अचीव करनी है, कौन सा पॉइंट पे जाना है, फिर आप उसको रिवर्स इंजीनियर करना स्टार्ट करें। सो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू हो लाइक ओन अ सॉफ्टवेयर कंपनी और मैं उसको चलाऊं, ये जो भी मेरा वो गोल है कि मैं पूरी सीईओ बन जाऊं या जो भी, तो उसको रिवर्स इंजीनियर करें। किसने आपके पॉइंट पे स्टार्ट किया वो उस पॉइंट पे पहुंचा है, उनको जाके आप लिंक्डइन पे देखें कि किस तरीके से उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया। A lot of the times people start with working for startups या working for these internships areas. तो आप लोग जाएं, इवन दो अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है, हम कैसे करेंगे, अप्लाई करने में क्या जा रहा है। इधर NIC जो NED के अंदर है, दे हैव दीज सेशंस, वो लोग हर बार करा रहे होते हैं, उधर पार्टिसिपेट करें। वो लोग काफी फर्स्ट ईयर को भी ले लेते हैं। सोसाइटीज में जाएं, यू विल हैव अ चांस टू कनेक्ट विद सीनियर्स जो लोग काफी अच्छी चीज कर रहे होते हैं। मतलब
फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स ना, आप उनसे इंस्पो लें कि उन लोगों ने क्या अपने फर्स्ट ईयर में पैराडाइज किया और फिर वो यहाँ पे आके पहुंचे। एंड आई वुड से आप क्या कहते हैं, ये जो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक मैंने बताया ना, उस पर अभी फॉरन रजिस्टर कर लें और उसके कोर्सेज करना स्टार्ट कर लें। जिस चीज़ पे आपको आप जब अपना नॉर्थ स्टार डिफाइन कर लेंगे ना कि अगर आपको एआई में जाना है या जो भी हार्डवेयर डेवलपमेंट या जो भी उससे रिलेटेड, फिर आप वो क्या कहते हैं कोर्सेज ले सकते हैं। और यू नो व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अपने माइंडसेट को चेंज करना। और सेकंड चीज इज डिसिप्लिन। आई थिंक फर्स्ट ईयर में यू शुड लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज मल्टीपल थिंग्स। आप जब सोसाइटीज में आते हैं आपका वो डिसिप्लिन बन जाता है। आप जब क्या कहते हैं अपने फोन वाली हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर से, तो इट्स इजी टू यू नो डेवलप अ वेरी गुड फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में। अगर आप ये करना शुरू कर लें तो आप लोग पता नहीं क्या बन जाएंगे फोर्थ ईयर तक। आई कैन गारंटी दैट। एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि आई कांट रीड द चैट्स, तो आप लोग सॉरी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बाय अमार फरीद। इट्स आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल हैकाथॉन। अच्छा, फॉर दिस आई वुड से कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप नहीं जीतेंगे। लाइक थिंक अबाउट इट, क्या हो जाएगा? कोई आपको डांटेगा, कोई आपको कहीं जेल ले जाएगा? नथिंग इज गोना हैपन। नथिंग। क्या कर लेंगे आपको अगर आप नहीं जीते? तो यू द ओनली थिंग इज कि आप जो आपकी लर्निंग होगी, जो आपको चांस मिलेगा कि आप मेंटर से बात करें। हैकाथॉन्स में यूजुअली क्या होता है, जैसे डेव पोस्ट है बहुत अच्छा, लैब लैब एआई है जिसपे मैं पर्सनली बहुत पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। तो इवन जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 जीती हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं बहुत सारे नहीं जीती हूँ और बहुत टाइम्स आया हुआ है, लेकिन मेरी जो इंजीनियरिंग स्किल है वो कितनी इम्प्रूव हुई, पिचिंग करने का तरीका कितना इम्प्रूव हुआ। जो उधर मेंटर्स होते हैं वो जो कंपनीज से उधर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए कि आप अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, उनसे जो एडवाइस मिलती है, उनके साथ चीज़ें बनाना, इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप वो चीज़ बना लें। तो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग as a learning experience or as a chance to grow yourself, I think that immediately वो fear वाला चला जाता है, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे होते कि अगर मैं नहीं जीता तो क्या हुआ, अगर मैं नहीं जीती तो क्या हुआ। कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जो लर्निंग मिलने वाली है ना, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 7 हैकाथॉन में आप लर्न करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, यू विल इवेंचुअली अचीव समथिंग इवन बेटर। तो आई थिंक ये जो फियर होता है ना, ये मोस्टली आता है कि एक नंबर 1 कि यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट, एंड सेकंड इज कि यू थिंक के ये वाली चीज रिस्ट्रिक्टेड है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, या जो कि सिर्फ वो लोग ही जीतते हैं, मैं तो कैसे जीत सकती हूँ या जीत सकता हूँ। तो एवरीवन स्टार्ट समवेयर एंड यू हैव टू गेट ओवर दैट वन ब्रिज टू रियलाइज कि यार मैं ये कर रही हूँ अपने आप को ग्रो करने के लिए, मैं कर रहा हूँ अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचना स्टार्ट करें देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। और कोई क्वेश्चन है चैट में? Yeah, okay. I think that's it. That brings us to the end of the today's session. On behalf of CIS community, I'd like to extend our heartfelt thanks to Ms. Muniba Noman for taking the time to be with us and sharing such valuable insights. Allah Hafiz. Thank you, Muniba. Allah Hafiz. Thank you.